Hello everyone. I Sumesh Sharma from Ajay Kumar Garg Engineering College, Department of Information and Technology, are going to discuss about the subject programming for problem solving via C language. The topic we are going to discuss today is arrays. So we are going to understand about arrays. How many number of types of arrays are there? So what is an array? Array. If we are talking about data types, it's a derived data types. An array is a derived data type. Fine. Why we use an array? If I talk about the definition of an array is basically the collection of homogeneous type of data. Homogeneous stands for similar kind of data. If we want to store similar kind of data, we can store it into arrays. An array is a collection of similar or homogeneous type of data. Fine. Why we are in need of an array? Let's suppose we are going to store the marks for the 50 students. Then how many number of variables we need to declare? At least 50 variables we require to store the 50 students marks for a subject. If there are more subjects and more variables, more marks and more students are there, then we declare many number of variables. Fine. So instead of declare many number of variables, we use the array, which is the collection. Array is basically the collection of the data. Fine. So we can declare and sort the problem using array. So how we do declare the array? The declaration. How we do declare the array? Declaration is specify. First we write the syntax. I am talking about that there are many one dimension, two dimension arrays, and then after it we say multi-dimension array. Fine. First we understand the one dimension array. What is mean by one dimension array? One dimension array का अगर हम syntax देख रहे हैं तो how we write the syntax? First we declare the data type, then we specify name of arrays, and then we declare the size of array. पहले हमें क्या बताना है? डेटा टाइप बताना है, उसके बाद हम उस एरे का नाम बताएं और उसके बाद हम उसका साइज बताएं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई वॉन्ट टू स्टोर integer type of data, then the name of x array is x, and I want to store let's suppose 500 values. So I declare it like this. The one square bracket indicates one dimension. If it contains two arrays, two square brackets, then it's represent 2D array. More than 2, it's multi-dimensional array. Fine. So the representation of one dimension array is by this. We need to declare the type, which kind of values we are going to store into the array. Then what is the name of the array? Then how many number of elements you want to store into the array. It may be 50, 100, 1000,
5000. How many number of types of values you want to store into the array? You must declare. So this is the declaration of one dimension array. Recently I am talking about the one dimension. We have declared, we define data type, array's name, then size, fine, and I declare integer x of size 500. How it stores into the memory? Because array is a continuous memory, it takes continuous memory location. So let's suppose the address, what is this? Address. Address of the first element is what? Let's suppose it is 1001 and I store the value here 10, then 15, then 7, then 39. And लाइट्स में आपने कुछ भी वैल्यूज आप लाइक सपोज यू राइट 100 here. So the first element represented with x0, second element will represent with x1, this will represent x2, so on. So the last element would be x of n minus 1. So the first element of the array represented by x0, second element x1, so the last element would be of the array is x of n minus 1. अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 1001 है तो सेकंड एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? 1003, 1005 थर्ड एलिमेंट, बिकॉज इंटीजर टेक्स 2 बाइट into the memory. फाइन. अगर हम सी में किसी एरे को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? गाइस लिसन, लुक, दिस इज व्हाट इंटीजर x10, दिस इज व्हाट डिक्लेरेशन. फाइन. If I want to store some values into the array, how we do this? For example, if I write integer x10, for this I have to mention 10 values. This is the one way to define the values into the array. If you want to read the values from the user, you need to use the scanf there. Okay. Otherwise, you can write integer x0 equals to 1, x of 1 equals to 2, x of 2 equals to 3, x of 3 equals to 4, x of 4 equals to 5, ठीक है. तो या तो आप ऐसे लिख लीजिए वैल्यूज को या फिर आप ऐसे डिफाइन कर लीजिए. सो आई सपोज द बेटर वे इज टू डिफाइन द वैल्यूज इनटू एरे इज इन दिस वे. तो आई हैव टॉट यू कि हम किसी एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं. वी डिफाइन द डेटा टाइप विच काइंड ऑफ वैल्यूज वी आर गोइंग टू स्टोर इनटू द एरे, द नेम ऑफ द एरे एंड द साइज, हाउ मेनी नंबर ऑफ values we want to store into that array. From our side, we take it maximum and we can take minimum values into that if we do not store the maximum values. Fine. मान लीजिए हमने यहाँ पे जैसे 500 वैल्यूज ली थी, यूजर ने कहा मुझे 100 ही डालनी है, तो रेस्ट प्लेस पे आपका गार्बेज वैल्यू आ जाएगा. फाइन. आपने 500 का वैल्यू, 500 की साइज का एरे डिक्लेयर किया, 100 वैल्यूज में आपने 100 स्पेस प्लेस पे वैल्यूज को स्टोर किया, रेस्ट 400 प्लेस पे आपका गार्बेज वैल्यू होगा. फाइन. फिर हमने देखा कि एरे का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है कहां से? x0 से. फाइन.
x0 से स्टार्ट होता है पहला एलिमेंट, तो दूसरा x1, तीसरा x2, सो द लास्ट एलिमेंट वुड बी x ऑफ n माइनस 1। क्लियर है? ठीक है। अगर हम इन वैल्यूज को यूजर से रीड लेना चाहते हैं तो हम वो वैल्यूज कैसे लेंगे? नाउ वी सी दिस। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड राइट ए प्रोग्राम टू रीड द वैल्यूज into the array, and I will add these values. I will add all these values which is being entered by the user and will print the sum of those values. Fine. So I write a program in C to read the values from the user and sum of all those values. Fine. ठीक है। अब हम ये काम करेंगे कैसे? तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि हम पहले क्या लिखेंगे, हेडर फाइल जो कि हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, #include stdio.h. Then we write the function which is void main. Fine. Now first let's suppose I declare integer x 100. Fine. और हमने एक n ले लिया, फिर एक हमने i ले लिया और हमने एक वेरिएबल ले लिया सम, जिसको हमने 0 से डिक्लेयर किया। फाइन। नाउ हमें यूजर से वैल्यूज लेनी है और हमें मान लीजिए हमने 100 साइज का एक एरे डिक्लेयर कर लिया और उस एरे साइज में हमें नहीं पता हम कितनी वैल्यूज यूजर इनपुट करेगा या नहीं करेगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें 50 वैल्यू इनपुट करनी है तो हम कैसे इनपुट करेंगे। देखिए 50 वैल्यू अगर हमें इनपुट करनी है तो हमें एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, और जब हम रिपीट करने की बात करते हैं तो हम वहां पे यूज करते हैं इटरेशन का। इटरेशन के लिए आप या तो व्हाइल यूज कर लीजिए या आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। हियर वी आर यूजिंग फॉर लूप। फाइन। तो हमने पहला स्टेटमेंट लिखा, printf enter the number of values। तो आप एरे में कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, आप वो वैल्यूज यूजर से इनपुट करा लीजिए। तो यूजर कहेगा scanf फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर इज मॉडुलस डी, एंड देन वो वैल्यूज यूजर ने इनपुट कर दिया। मान लीजिए n वो वैल्यूज हैं जो कि यूजर ने इनपुट किया। ठीक है, हमारे पास 100 वैल्यूज के लिए एरे हमने क्रिएट कर लिया। क्योंकि एरे का साइज 100 है, इंटीजर एक इंटीजर जो है 2 बाइट स्पेस लेता है, तो 100 के लिए टोटल स्पेस एलोकेट हो गया 200 बाइट का। अब यूजर ने मान लीजिए कोई भी वैल्यू इनपुट करी होगी, मान लीजिए 10 वैल्यूज, यूजर ने कहा मैं 10 वैल्यूज इनपुट करता हूं। नाउ फिर हमें लूप चलाना है। कहां से एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है? 0 से। लूप जाएगा i लेस देन n तक एंड देन i प्लस प्लस। अब एड्रेस ऑफ एरे का नेम क्या है? x एंड देन i। फाइन। अब यहां पर यूजर 10 वैल्यूज इनपुट करेगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, n क्या है? 10, तो ये लूप 10 बार चलेगा एंड यूजर विल इनपुट 10 वैल्यूज एंड दोज वैल्यूज विल स्टोर इनटू एरेज। फाइन। अब हमारे पास 10 वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है? इन सारी 10 वैल्यूज का सम निकालना है। अब जब हमें सम निकालना है तो हमें इन वैल्यूज को रीड करना पड़ेगा। रीड कहां से होंगी? एरेज से होंगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? लूप चाहिए, क्योंकि हमें 10 वैल्यूज फिर से पढ़नी है। एक वैल्यू होती तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देते, बट हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 10। इसलिए हमें 10 वैल्यूज को रीड करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा। नाउ व्हाट वी राइट? फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस सम इक्वल्स टू
सम प्लस एक्स ऑफ आई, ठीक है। और इसके बाद हम जब सम हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ मॉडुलस डी sum, and then the program will close. So by this means we can read the 10 values from the user and add those 10 values and get the sum of those 10 values. अब देखिएगा, हमारे पास यूजर ने मैक्सिमम साइज का एरे एलोकेट किया, 1 डायमेंशन एरे है विच इज x ऑफ 100 एंड हमारा एक वेरिएबल है कि क्या पता यूजर 100 वैल्यूज डालना चाहता है या नहीं चाहता है, या कम वैल्यूज डालना चाहता है, ज्यादा नहीं डाल सकते आप, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट क्या कर रखी है हमने 100। तो n हमारे पास एक वेरिएबल आ गया, i क्या है, i4 हमने लिया है इटरेशन के लिए, एंड देन एक वेरिएबल ले लिया सम, जिसमें हम उन सारी वैल्यूज को का सम करेंगे। सम को 0 से इनिशियलाइज इसलिए किया, अगर हम सम को 0 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो जहां सम वैल्यूज मतलब सम पे गार्बेज होगा और वो गार्बेज आपकी वैल्यूज में ऐड हो जाएगा और आपका रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो ये मान लीजिए आपके पास एक 100 बाइट 200 बाइट की एरे एलोकेट हो गई और यूजर ने कहा कि मैं केवल 10 वैल्यू डालूंगा एंड ये 10 वैल्यू यहां तक आ गई, फाइन। अब यहां पे कुछ वैल्यूज यूजर ने डाल दी एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां पे यूजर ने 10 वैल्यूज डाल दी। अब पहली लोकेशन क्या है, x0, दूसरी x1, x2, x3, x4 एंड सब टू x9, सही है। तो यहां पर हमने यूजर ने 10 कहा इनपुट कर लिया और 10 वैल्यूज को रीड करने के लिए हमने क्या किया, इटरेशन का यूज किया और एरेज को इनपुट कराया, एरेज में वैल्यूज को इनपुट करा लिया वाया स्कैनफ। स्कैनफ क्या है, इनपुट फंक्शन है किसका, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का, फाइन। तो यहां पे हमने 10 वैल्यूज रीड कर ली, यूजर ने बताया कि 10 डालूंगा, तो 10 वैल्यूज यूज रीड करने के लिए हमने क्या चलाया, यूज किया फॉर लूप को। अब जब हमारे पास 10 वैल्यूज आ गई तो हम उन 10 वैल्यूज का क्या चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। सम करना चाहते हैं तो हमने फिर से एक लूप चलाया, क्योंकि ये सारी वैल्यूज कैसे रीड की जाएंगी, जब हम लूप चलाएंगे। लूप चलाया तो हमने कहा सम बराबर सम क्या है 0 प्लस एक्स ऑफ आई, एक्स आई बराबर पहला क्या है इटरेशन है 0, तो एक्स 0 पे लेट सपोज 5 था, तो 0 प्लस 5 इक्वल्स टू सम। तो सम में पहले ही बार क्या वैल्यू स्टोर हो गई 5। अब x1 पे वैल्यू क्या है, i क्या हो गया, i बराबर 0 पे हमें मिला 5। अब i बराबर 1 पे क्या मिलेगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस x ऑफ 1। सम क्या है 5, x ऑफ 1 कितना है 3, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब नाउ i बराबर 2, सम बराबर सम प्लस x ऑफ 2, फाइन। x ऑफ 2 पे वैल्यू लेट सपोज कितनी है 41, सम कितना है 8 प्लस 41 इक्वल्स टू 49, फाइन। तो i बराबर 2 पे कितनी वैल्यू आ गई 49। इसी प्रकार से हम i बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और i बराबर 9, क्योंकि लूप 0 से स्टार्ट हो रहा था तो लेस देन 10 चलना है तो 9 तक जाएगा। और इस प्रकार से आपका हर बार सम जो है चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में i बराबर 9 पे जो सम आपको मिलेगा वो आपका सम लास्ट वैल्यू हो जाएगी और सारे एलिमेंट्स का सम आपको मिल जाएगा। एंड देन इन लास्ट वी प्रिंट दैट सम, फाइन। इज दैट क्लियर? सो व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ, हमने सीखा था कि एरेज क्या होता है, हमने बताया कि एरे एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, ठीक। और हमने बताया क्या कि एरे को हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना होता है। इट्स बेसिकली कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा या होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा। इट कैन बी ऑफ 1 डायमेंशन, इट कैन बी ऑफ 2 डायमेंशन एंड आफ्टर इट वी नेम एज ए मल्टी डायमेंशन।
हम बात कर रहे थे वन डायमेंशन एरे का। वन डायमेंशन एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले हम बताएंगे क्या, डेटा टाइप, फिर हम बताएंगे क्या, उस एरे का नाम बताएंगे, एंड देन वी से साइज। फाइन। तो हमने लिखा इंट x 500। यहां पे किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर टाइप को। एरे का नेम क्या है, x है, और वैल्यू कितनी है, 500 वैल्यूज को हम इसमें रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 500 वैल्यूज हैं तो एरे का साइज कितना हो गया, इंटीजर टेक्स 2 बाइट इनटू द मेमोरी, 500 वैल्यू रखनी है तो कितना स्पेस एलोकेट हो गया, 1000 बाइट का स्पेस एलोकेट हो गया। एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, x0 से, तो लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, x ऑफ n माइनस 1। फिर हमने सीखा था कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये हमने डिक्लेरेशन सीख लिया। एरे में वैल्यूज अगर हमें डालनी है, या तो हम ऐसे डाल दें वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट सपोज साइज 10 है, या फिर हम ऐसे लिखें x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 7 8 and then 9, and all the time you need to mention int in front of it. Fine. फिर हमने सीखा एक छोटा सा प्रोग्राम, अगर हमें ये वैल्यूज डिफाइन नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम डिफाइन कर देते हैं तो वैल्यूज सेम हो जाती हैं। व्हेन हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वी रन और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, इट विल बी द वैल्यूज विल बी रिमेन सेम। फाइन। बट अगर हमें हर बार नई वैल्यूज डालनी है तो यूजर से वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। यूजर से वैल्यूज कैसे ली जाती हैं, सी हमने ये सीखा कि यूजर से वैल्यूज कैसे ली जाती हैं। अगर यूजर वैल्यूज इनपुट करना चाहता है तो उसके लिए हम स्कैनएफ का यूज करेंगे। अब मान लीजिए हमें उन वैल्यूज का सम भी निकालना था, तो हमने सम कैसे निकाला, हमने एक एरे को डिक्लेयर किया, हमने n एक वेरिएबल लिया जो कि बताएगा कि यूजर कितनी वैल्यूज इनपुट करना चाहता है। i हमने लिया इटरेशन के लिए, क्योंकि हमें मैनी नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए। जब हमें मैनी नंबर ऑफ वैल्यूज इनपुट करानी होती है तो हमें इटरेशन का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट टेक। इटरेशन मतलब एक ही स्टेप को मैनी नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है। फाइन, विद द डिफरेंट वैल्यूज। और एक हमने वेरिएबल लिया जिसमें हम उन सारी वैल्यूज का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो हमने देखा कि यूजर से हमने n इनपुट करा लिया, आप कितनी वैल्यूज इनपुट करना चाहते हैं आप बता दीजिए। तो यूजर ने कहा n वैल्यूज इनपुट करना चाहता हूं, ठीक है। तो हम उन n वैल्यूज को इनपुट कराना चाहते हैं तो हम इटरेशन चलाते हैं 0 से लेकर n तक। फाइन। और उतने टाइम ये लूप चलता रहेगा जब तक ये एग्जिट नहीं करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी। फाइन। तो हमने 10 वैल्यूज अगर यूजर ने इनपुट करने को लिए कहा तो ये लूप 10 बार चलेगा आपका। फाइन। तो यूजर से हमने वैल्यूज इनपुट करा ली। अब हमने कहा कि आप इन वैल्यूज का सम चाहते हैं, अगेन यू नीड टू फेच दीज 10 वैल्यूज फ्रॉम दी एरे। अब ये दीज 10 वैल्यूज कैसे एक्सेस होंगी, अगेन यू रिक्वायर ए लूप। आप सिंगल वैल्यूज तो नहीं थी जो डायरेक्ट आपने ए या बी ले लिया और आप डायरेक्ट ऐड कर लें, नहीं, देयर आर द 10 वैल्यूज, सो दैट्स व्हाई यू रिक्वायर अगेन इटरेशन। देन अगेन यू यूज द फॉर लूप, i equals to 0 less than n and i plus plus, एंड सम में हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने लिखा सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ i बराबर 0 तो पहला एलिमेंट, i बराबर 1 तो दूसरा एलिमेंट, एंड सो ऑन। द लूप विल कंटिन्यू फॉर 10 टाइम्स एंड इट विल सम ऑल द 10 वैल्यूज स्टोर इनटू द सम वेरिएबल, एंड देन इन लास्ट वी प्रिंट द sum. So this is the way how we take the values from the user and how we define the values directly without taking it from the user. So I hope it makes sense to you all, and you will get advantage how to read the values into array from the user. Now I stop myself here and I'll discuss the 2-dimension array by my next class, and we'll discuss some program 2 in this series.